دریا ستلج میں پانی کی شدت میں اضافہ، میکلوڈ گنج میں بھی دن بدن صورتحال بگڑنے لگی۔ ہر طرف سیلاب نے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا، زمینی کٹاؤ بھی جاری۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آگاہ کریں گے محمد طاہر رضا، آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں دریا ستلج عثمان پور کے مقام پر، جہاں پر دریا ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جہاں پر ہزاروں ایکڑ پر مشتمل تل اور چاول کی جو فصل ہے وہ زیر آب آ چکی ہے، اور یہاں پر متعدد جو گھر ہیں وہ بھی زیر آب چکے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں جن کا جو گھر ہے وہ زیر آب آ چکا ہے، اور یہاں پہ مزید جو گھر ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ادھر کا رہنے والا ہوں۔ میرا یہ سامنے گھر ہے اور بالکل پانی میں ڈوب گئی ہے، اور کوئی بھی انتظامیہ ادھر نہیں آ رہی، خالی فوٹو سیشن تک آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے تک تو کیمپ موجود نہیں، تقریباً 10 کلومیٹر دور انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، کوئی راشن کا سامان نہیں، اور بالکل یہ دریا نے کٹاؤ لگایا ہوا ہے، مکمل گھر اس میں پانی میں بہہ گئے ہیں۔ اور ہم انتظامیہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں مشینری مہیا کی جائے اور ہمارے جو نقصان ہو رہا ہے اس پر توجہ دی جائے۔ جی، اس نوجوان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں اور دریا کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر اس کٹاؤ پر قابو پانے کے لیے کوئی مشینری موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ یہاں پر ہمیں مشینری جو ہے مہیا کی جائے۔ دریا ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند ترین، چشتیاں کے مطابق بند ٹوٹنے سے بستیاں زیرآب، آئی جی پنجاب کے احکامات پر پولیس بھی الرٹ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد حسین ہاشمی سے۔ جی بالکل، دریا ستلج کے مقام پر پانی کی سطح میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں دلہ آکوکا کے مقام پر، جہاں پر بند ٹوٹنے کی وجہ سے تمام دلہ آکوکی کی جو بستی ہے اس کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے۔ آئی جی پنجاب کے احکامات اور مریم نواز زیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر پنجاب پولیس کو بھی سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس وقت سرکر انچارج جو ڈی ایس پی ہیں محمد اکمل بسرا صاحب، وہ دلہ آکوکا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر پبلک جو پھنسی ہوئی ہے پانی کے اندر ان کو ریسکیو کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی بھاری نفری، تمام جو ایس ایچ او ہیں تھانہ سٹی اے ڈویژن، تھانہ شہر فرید اور مختلف جو تھانہ جات ان کے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں، سر جی بتائیے کیا صورتحال چل رہی ہے اور کیسے لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے؟ جی مہربانی، آپ ادھر آئے۔ یہ 2 بند ادھر تھے دلاکو کی بستی بچانے کے لیے، جو پہلا بند ٹوٹا اور اس کے بعد دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ اب یہ بستی کے قریب یہ پانی آ گیا۔ ہمارے سی ایم صاحبہ کی ہدایات کے مطابق، آئی جی صاحب کی، آر پی او صاحب اور ڈی پی او صاحب کی ہدایات کے مطابق ہمارا ایک فیصد اس مشکل گھڑی میں لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو ایویکویٹ بھی کر رہے ہیں، اور محفوظ مقامات پہنچا کر ادھر بھی خالی نہیں چھوڑ رہے۔ ان کے جانوروں کا چارہ، جانوروں کا انتظام، لوگوں کی رہائش کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ اب لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ادھر سے نکل جائے، چونکہ پانی کے آگے ہم بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ میرے ساتھ ایس ایچ او سٹی اے ڈویژن، ایس ایچ او شہر فرید، یہ میرے ساتھ ہیں، ہماری پوری نفری، اور باقی ایس ایچ او جو دوسرے پتن ہیں، جو بند ہیں، جہاں جہاں بستیاں ادھر موجود ہیں، ہر جگہ سے بندوں کو ایویکویٹ کر رہے ہیں، ٹرالی ٹریکٹروں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور یہ آپ کے طور سے ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جانی نقصان نہ ہو جائے کسی طرح سے، لوگوں کو محفوظ مقامات۔ یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے میں تھوڑا سا رزق کر رہے تھے، لیکن اب الحمدللہ لوگ موٹیویٹ بھی ہیں اور لوگ اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ اجی یہ تھے ڈی ایس پی سرکل چشتیاں، جن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو بچانا ہمارا فریضہ ہے، ایک جان بچانا انسانیت کی جان بچانے کے مطابق ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دلہ آکوکا کے مقام پر 2 بند ایسے تھے جن نے دلہ آکوکا کے مقام کو روکا ہوا تھا، لیکن ان کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی تمام علاقہ پانی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کافی سارے گھروں کو، کافی سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے گھروں سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے گاڑیاں بھی لے کے ہیں، یہاں پر بھاری نفری پولیس کی تعینات کر دی ہے۔ اور آئی جی پنجاب کے احکامات پر تمام جتنا بھی فلڈ ایریا ہے جہاں پر سیلاب زدگان موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ تعینات اس لیے کی ہے کہ لوگوں کو فوری دریا چناب میں پانی کا بہاؤ بتدریج بڑھنے لگا، سیلابی ریلوے سے قبل پانی بستیوں میں داخل، ریسکیو کی جانب سے آپریشن تیز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے وسیم شہزاد، بتائیے گا۔ وسیم شہزاد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ دریا چناب میں پانی کا بہاؤ بتدریج بڑھنے لگا، سیلابی ریلوے سے قبل پانی بستیوں میں داخل ہو گیا، ریسکیو کی جانب سے آپریشن مزید تیز کر دیا گیا۔ وسیم شہزاد سے رابطہ بحال ہو گیا ہے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو اس وقت میں ہیڈ محمد والا
पुल पर मौजूद हूँ, जिसको ये फैसला किया गया है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, अगर सैलाबी रेला जो है वो 8 लाख क्यूसिक से ज़्यादा होता है तो उसके बाद जो है वो इसको ब्रीच करने की तरफ जो है वो जा सकते हैं। मेरा में दूर दूर तक जो है वो अब सिर्फ पानी ही पानी दिखाया दे रहा है। अब से 2 रोज़ कबल या 1 रोज़ कबल की बात करते चले तो यहाँ तक भी पानी जो है वो मौजूद नहीं था। इसके आगे फसलें जो हैं वो शुरू हो गई थी और बाकी चीज़ें जो हैं अब वो शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है वो ये तमाम एरिया जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। और इस हेड मोहम्मद वाला पुल की बात करते चलें तो शहरियों की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो जानवर हैं, जो चौपाएँ हैं, यहाँ पर लेकर लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ गए हैं, उनको महफूज मकामात की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त अगर मैं आपको अपने बैक साइड के मनाजिर जो है वो दिखा सकूं तो यहाँ पर जो है वो कुछ ब्रिजिंग पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो होल हैं सड़क के ऊपर वो किए गए हैं ताकि जो बम हैं वो इसके अंदर जो है वो फिट किए जा सके। इस वक्त अगर मैं जिस पॉइंट की बात करते चलूँ तो ये ज़मीन के अंदर जो है वो गड्ढे जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि ये एक सारा एरिया जो है वो ब्रिजिंग के अमल से जो है वो गुजारा जाएगा। अभी जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है, इसके बाद ट्रैफिक को जो है वो भी रोक दिया जाएगा। ये एरिया है, इस एरिया की अगर हम बात करते चलें तो इस एरिया से जो है वो पानी को गुजारने के लिए हिकमत अमली जो है वो बनाई है इंतज़ामिया ने, जिससे जो सैलाबी रेला है अगर हम बात करते चलें उसकी कि वो पुल जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो पुल को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल को बचाने के लिए ये फैसला किया गया है। और यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो यहाँ पर बारूदी मवाद जो है वो नस्ब जो है वो किया जाएगा और फिर इसके बाद जो है वो यहाँ से पानी को जो है वो गुजारा जाएगा। तो ये अमल है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पुल के ऊपर जो है वो मौजूद हमें दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इनसे बात करते क्या कहेंगे। यकीनन एक मुश्किल घड़ी है और इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं आप लोग भी, कुछ आपके साथ जो है यहाँ पर किसान भी मौजूद है जिनके घर जो हैं वो पानी के अंदर डूब गए और अब वो लोग आपके साथ सड़कों पर खड़े हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है, क्या आलम देख रहे हैं अंदर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़हीमुद्दीन कुरैशी, प्रेसिडेंट गुड साउथ पंजाब। देखें जी, अभी हम विज़िट करते हुए आ रहे हैं चनाब के ऊपर, दरिया चनाब जो शेरशाह वाला है वहाँ पर भी हम लोग गए। लोग बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं और लोग बेचारे बंद पर बैठे हैं, ना कोई पुरसान हाल है, ना कोई उनके पास हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा गया है, ना ही कोई उनकी कोई इमदाद कर रहा है। और जनाब अब हम विज़िट करने आए हैं हेड मोहम्मद वाले पे। इस टाइम हम देख रहे हैं यहाँ से रात को किसी भी टाइम 8 लाख क्यूसिक पानी गुजरना है और हम लोग यहाँ पर आए हैं कि भाई लोग यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं, लोग हैं, देहाती हैं बेचारे, जो कि बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं, जो चौपाए बेचारे उसके बीच में जनाब बह गए हैं। हम यही कहेंगे कि जनाब ये जो पानी है हर दफ़ा ही है तबाही का बाइस बनता है। 35 साल पहले भी ये एक जनाब यानी कि फ्लड आया था और हमारी जो हुकूमत है कोई इंतज़ाम नहीं करती। अगर आज बंद बनाए हुए होते और ये पानी जो है अब अगर उसमें रोक लिया जाता या बॉन्ड कर लिया जाता, ना ही तो अगर डैम बने हुए होते तो हमारी आज ये तबाही भी ना होती। हमारे जो लोग गांव के गांव तबाह हो गए हैं। और जनाब मैं भी आज इसी लिए यहाँ पर आया हूँ कि भाई जनाब अगर मुझसे जो बंद पड़े, मैं अपने मुसलमान भाइयों की, पाकिस्तानियों की जो भी यहाँ पर मुझेरी ज़रूरत है, मेरा गुट से ताल्लुक़ है, इंतज़ामिया को या किसी और मेरे भाई को अगर किसी को मेरी हेल्प है, मेरी सर्विस उनके लिए फ्री होगी, मेरी जान भी उनके लिए हाजिर होगी। और यहाँ पर इंतज़ामिया है वो अपना किरदार अदा कर रही है। आप गुड्स को देख रहे हैं, कितने ट्रक्स जो हैं वो आप लोगों की जानिब से भेजे गए इन लोगों की इमदाद के लिए और अब जो है वो यहाँ से इनको निकाला जा रहा है। आप लोग ट्रक्स भी लेकर आए। आज से 3 दिन पहले कश्ती भेजी है, मैंने 9 गाड़ियाँ भेजी हैं कश्तियों के लिए, जो स्टेट एरिया से कश्तियाँ उठाई हैं। ये बाहर मोहम्मद वाले पे लेके आई हैं, वो उधर बंदबोसन की हैं, आगे की हैं, कश्तियाँ लेके आई हैं गाड़ियाँ। अभी गाड़ियाँ अमदाद के लिए भी मांग रहे हैं, गाड़ी अमदाद के लिए भी देंगे हम। जितनी भी गाड़ियाँ जोन से इलाके में कहेंगे हम देने को तैयार हैं। गाड़ियाँ हम खड़े हैं उनको लिए। जो लोग हैं यहाँ अभी से ही वो इमदाद के लिए जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और बात करते चले तो शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस वक्त जो है इलाका मकीन है, आप इलाके में किस तरह का खौफ व हरास जो है वो फैला हुआ है, कितनी मुश्किलात हैं, कैसे देख रहे हैं इर्द गिर्द की बस्तियों को?
अस्सलाम वालेकुम। हम इधर से जितनी भी तबाही देख रहे हैं, ठीक है, ये सच है, ये झूठ नहीं है, ठीक है। हम जनाब शेरशाह में देख के आए, ये इधर हेड मोहम्मद वाले में भी देख के आए हैं। ये हमारे सदर हैं और ट्रांसपोर्ट अड्डे के मालिक हैं। इनकी गाड़ियाँ जुमेरात को इन्होंने दी थी गाड़ी मुझे। ये जो हेड मोहम्मद वाले जितने नीचे गांव हैं, पूरा दिन मैं इधर से जो घर यानी कि डूबने वाले थे उनको निकाल के इधर मुल्तान शहर में शिफ्ट किया, और जानवर जितने थे वो भी मैंने जुमेरात को इधर मुल्तान में शिफ्ट किए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चार्जेस वगैरह भी लिए गए हैं या इस वक्त सूरत हाल में आपकी क्या पैगाम? नहीं, हम डीजल के पैसे लिए हैं उनसे। ले जी, हम एक हैज़ हेल्प यहाँ पर आए हैं और अपने मुसलमान भाइयों की जो हेल्प करने के लिए आए हैं। हम रात भर यहाँ मौजूद हैं। अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम अपनी ये खुशकिस्मती समझेंगे कि आज के दिन अपने हम जो भी मुश्किल में हमारे भाई फंसे हुए हैं, हम उनकी हर तरह मदद करने को तैयार हैं। अल्लाह ऐसा टाइम ना लेके आए। हम अपने हुक्मरानों से यही कहेंगे कि हर दफ़ा ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आ जाती है तो डैम क्यों नहीं बनाए जाते? आप डैम बनाएं और इस पानी को सिक्योर करें और ये जो लोगों को नुकसान से बचाएं। लोगों के माल मवेशी चले जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, लोग बेयारो मददगार हो जाते हैं, लोग बंद पर बैठे हैं जिनको कोई हेल्प, कोई पुरसाने हाल ना है, ना उनके पास खाने पीने को है, ना कोई पानी है और बाकायदा, और उनके जनाब बीमारियों ने उनको घेरा है, कोई उनको रेस्क्यू नहीं कर रहा है, कोई जनाब अपनी मदद लोग आपके तहत है। हम यहाँ आए हैं, अगर किसी किस्म की हमारी हेल्प हो, हम गवर्नमेंट के साथ भी और अपने जो इस टाइम मुश्किल में भाई फंसे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे जनाब मुल्तानी भाई हैं, हम उनकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हैं। हेल्प करने के लिए जो लोगों की आमद का सिलसिला है वो भी इस वक्त जो है वो जारी है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर यहाँ का एरिया कुछ नज़र आ सके तो वो भी दिखा सके, लेकिन अंधेरा जो है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें दूर तक जो है वो पानी ही पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। और अगर हम दिखा सके तो इस वक्त भी बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर जो है वो मौजूद है, और इसके साथ साथ इस तमाम तरह मनाजिर को अगर हम कैप्चर कर सकें तो इस वक्त ये जो अमल है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि दिखाया जा सके कि किस हवाले से जो है वो कौन सा एरिया जो है वो ब्रिजिंग की तरफ जाएगा। तो इस वक्त जो है ये इंतज़ामिया की जानिब से ये पीछे जो बार्ड्स हैं वो भी लगा दी गई हैं, ड्रम्स जो हैं वो भी खड़े कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ पुल को बचाने के लिए, हेड मोहम्मद वाला पुल को बचाने के लिए ब्रीजिंग का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त अगर मैं दिखा सकूं तो ये कुछ पाइप जो हैं वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे नस्ब जो है वो किए गए हैं ताकि इनके अंदर से जो है वो बारूदी मवाद को जो है वो फिट किया जाएगा, ताकि जो एक अमल है वो आराम से जो है वो तय पा सके, क्योंकि अब ये मुकम्मल तौर पे अभी तो सिर्फ ये पाइप जो हैं वो रखे गए हैं, इसके बाद जो है वो इसके अंदर बारूदी मवाद डालकर जो है वो फिर इनको ढका जाएगा, और उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया फैसला करेगी, टीम फैसला करेगी कि इस ब्रिज को जो है वो किस तरीके से जो है वो ब्रिजिंग जो का अमल जो है वो मुकम्मल करना है। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो लोग जो है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मेंबर कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर का हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। रोहित से गुफ्तगू में मेंबर कौमी असम्बली का कहना था कि अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए बहुत अहम है। हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट को ब्लास्ट करके पानी का रुख बदलने के लिए तोड़ने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ोहेब बुखारी से। आज बिल्कुल दरियाए चनाब पर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। अगर हम बात करें तो पानी जो है वो त्रिमुख पर जो है वो टच कर चुका है। इस वक्त हम ब्रीचिंग पॉइंट पर मौजूद हैं, जिसको इंतजामिया ने ब्रीचिंग पॉइंट का नाम दिया है कि अगर पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा आता है तो फिर इस पॉइंट को जो है वो ब्लास्ट करके जो है वो पानी का रुख मोड़ दिया जाएगा। मेंबर कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात कर रहे थे। मलिक साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त फ्लड जो है वो जोर से जो है वो जारी है? मैं इस वक्त यहाँ हेड मोहम्मद वाला दरियाए चनाब के उस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ से इन्होंने ब्रीच करके इस जगह को ब्रेक करना है, और पानी का एक बड़ा रेला जो अगले 24 घंटे में तवक्को की जा रही है कि वो यहाँ से गुजरेगा, जो कमोबेश 8 लाख प्लस माइनस क्यूसेक होगा। तो ये वही जगह है जहाँ पहले भी, आज से कुछ साल पहले भी ब्रीच किया गया था। इसके लेफ्ट साइड पे ये सारा मुल्तान शहर है, और ये तकरीबन मेरा जो कौमी असम्बली का हल्का है ये उसका बॉर्डर है। तो यहाँ पीछे की आबादियाँ अगर आप देखें, और ये पानी वैसे जो पहले आया है सैलाब कुछ दिन पहले, उसमें ये सारा इलाका डूब गया है, लेकिन मैं अल खिदमत फाउंडेशन और बाकी तमाम इदारे, तमाम तंजीमें, फलाई तंजीमें, मीडिया,
उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप यहाँ मौजूद हैं कि हेड त्रिमू के मकाम को वो टच कर चुका है, बड़ा जो रेला है, और वो अगले 24 घंटे में मुल्तान से और इस जगह से गुजरेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर साहब जो है वो मौजूद है, यही बता रहे हैं कि क्योंकि त्रिमो ने ही मुल्तान शहर की पोजीशन को जो है वो वाजे करना है, तो शहर जो है वो अगले 24 घंटों के हवाले से बहुत अहम है। मौसा बेली के सैलाब मुतासिर खुले आसमान तले सिंध के गुस्साने पर मजबूर, 5 दिन गुजरने के बावजूद रिलीफ कैंप कायम ना हो सके, मुल्तान इंतजामिया कोई भी सहूलियात फराम ना कर सकी। सैलाब मुतासरीन मोहम्मदपुर घोटा पुल पर बेयारो मददगार बैठे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, 5 दिन गुजरने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप का कायम नहीं किए गए। बात करते चलें तो इंतज़ामिया सैलाब मुतासरीन को सहूलियात फराम करने में नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से बात करते चलें तो मौजा बेली के सैलाब मुतासरीन इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नकल मकानी करके यहाँ पर पहुँच तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त अपने औलाद, बच्चों और माल को लेके, मवेशियों को लेके इस वक्त जो है वो मोहम्मदपुर घोटा पुल पर जो है वो और इर्द गिर्द के इलाकों में, ज़मीनों में खुले आसमान तले यहाँ पर बैठे हैं और ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मुतासिरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान बताएं, क्यों यहाँ पर खुले आसमान तले बैठे हैं? कोई आपके साथ ताउन नहीं किया गया? नहीं, कोई ताउन नहीं किया। हमको उधर से पुलिस ने डंडे मार के निकाल दिया, इधर कोई कैंप नहीं दिया, कोई राशन नहीं दिया, कोई हमारे जानवरों के लिए चारा भी नहीं दिया, किसी ने हमारी खबर भी नहीं ली। बल्कि वो लोग कहते हैं उधर अस्पतालों में आओ जहाँ कोई दरख्त नहीं है, कोई साया नहीं है, एक छोटा सा कपड़ा है, उसमें हम कहाँ रह सकते हैं। इधर हमारे पास जानवर है, इनका चारा नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है। इनको कहाँ छोड़ के जाएं? इनको कहाँ छोड़ के जाएं? हम तो खैमों में चले जाएं, इनका चारा कहाँ से लेके आए? इनके लिए क्या लेके आए? वो डीओ साहब आते हैं, वो बार बार से विजिट करके चले जाते हैं, कोई अफसर आते हैं वो बाहर से चले जाते हैं। हमारे साथ कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं है। हम किसी को कहते हैं तो वो कहते हैं अस्पतालों में आओ। अस्पतालों में क्या करने हम जाए? उधर ना ही कोई हमारे माल का, जानवरों का इंतज़ाम है, ना कोई दरख्त है। वहाँ खुले आसमान, जो कल की बारिश हुई है, इधर हमारे जानवरों के नीचे सब पानी पानी था, हम भी पानी में बैठे रह गए। कोई हमारे पास एक तंबू भी नहीं दिया गया, खैमा भी नहीं दिया गया। वो हम खैमे से भी मारूम रह गए हैं। बताएं क्या ताउन किया गया? सुबह जना गए हैं 12-1 बजे, उतना डीओ साहब को भेजते हैं साकू तंबू दिया जाए। उसने किया नहीं भाई, इस देर आओगे बैठो, इन्हें जना ढांढा को किधर करूँ जानवरों को। जी आप देख सकते हैं कि इस वक्त 5 दिन गुजर चुके हैं और मौजा बेली से आए सैलाब मुतासरीन इस वक्त मोहम्मदपुर घोटा पुल पर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में, प्लाटों में, मैदानों में बैठे हैं, क्योंकि इनके साथ इंतजामिया की जानिब से कोई ताउन नहीं किया गया। इसलिए ये अपने माल मवेशी और अपने घर वालों समेत खुले आसमान तले बैठकर जिंदगी। फराज रमजान, अपडेट करने का शुक्रिया। हेड पंजनत के मकाम पर दरिया चनाब में बड़ा रेला आने का इम्कान, 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी का रेल पंजत से गुजरेगा। मुतलका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया चनाब में पानी की आमद 91,000 क्यूसिक, अखराज 77,000 क्यूसिक। त्रिमो पर पानी का अखराज 4,55,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे राना इमरान सादी से, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं हेड पंजनत के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पानी का इनफ्लो जो है वो 91,000 क्यूसेक है, जबकि आउटफ्लो जो है 77,000 क्यूसेक पानी का बताया जा रहा है। मैं आपको पानी की मज़ीद सूरत हाल से अगर करूँ तो इस वक्त चिन्योट में 8,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो दरियाए चनाब से आउटफ्लो हो रहा है और हेड त्रिमो के मकाम पर जो है 4,29,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जो दरियाए चनाब की जानब रवा दवा है। दरियाए रावी की अगर बात करें तो इस वक्त अब्दुल हकीम के मकाम पर 2,31,000 क्यूसेक पानी जो है वो उसकी आमद बताई जा रही है, जबकि दरियाए सतलुज की अगर हम बात करें तो 1,54,219 क्यूसेक पानी हेड सुलेमान की पहुंचेगा और उसके बाद जो हेड इस्लाम से झांगड़े के रास्ते होता हुआ जो है ये हेड पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा। जो इरिगेशन इंतज़ामिया की जानिब से दरियाए सैलाब में पानी के हवाले से बताया गया है कि आने वाले 3 और 4 सितंबर तक जो है दरियाए चनाब का यहाँ जो है पानी पहुँचेगा और उसके साथ साथ
जो दरियाए सतलुज का पानी है वो 10 सितंबर तक जो हेड पैनल के मुकाम पर पहुंचेगा। दरियाए रावी का जो पानी है वो दरियाए चनाब के साथ यहाँ 3 से 4 सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की कच्चा कोना रिलीफ कैंप आमद, मुतासरा खानदानों से मुलाकात, मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त की। मुतासरीन को फराहम की जाने वाली खुराक, साफ पानी और तिबी सहूलियात का जायजा। सूबाई वजीर ने रिलीफ कैंप में मुतासरीन के साथ खाना भी खाया। डिप्टी कमिश्नर की सूबाई वजीर को अब तक के रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। रिलीफ कैंप में तिबी सहूलियात के कायम आरजी हेल्थ यूनिट का भी दौरा किया। सूबाई वजीर ने कहा, मुतासरीन की जल्द वापसी बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। लोधरा में सैलाब की सूरत हाल का बागौर जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एवेन्यू सैयद वसीम हसन ने जिला फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के तैनात स्टाफ को हिदायत की कि सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर रखी जाए। उनका कहना था, इतलात की बरवक्त रसाई से इंतजामी अफसरान को मुतवक्के नागहानी सूरत हाल से निपटने में मदद मिलेगी। लोधरा में सैलाब मुतासरीन के इनखला के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नसीर की ज़ेर निगरानी ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कैमरे की आंख में आने वाले अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकली में मदद मिलेगी। फ्लड बंदों पर सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल मॉनिटर की जाएगी। फ्लड रिलीफ टीमें ट्रेस शुदा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाएंगी। दरियाई इलाकों में सतलुज तुगयानी से मुतासर अफराद की नकल मकानी के बाद इंतजामिया माली मवेशियों की देखभाल में मसरूफ। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी की सरबराही में लाइव स्टॉक एहलकारों ने रेस्क्यू किए गए मवेशियों को महफूज मकामात पर चारा फराहम किया। एसी का कहना था कि तहसील लोधरा के दरियाई इलाकों में रह जाने वाले अफराद के फौरी इनखला के लिए फील्ड में रहकर मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं और तमाम अफराद को उनके माल असबाब समेत सरकारी ट्रांसपोर्ट भी मुहैया की जा रही है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ने लगी। आइंदा 48 घंटे अहम करार। एसएसपी ऑपरेशन एडीसीजी मोहम्मद सैफ की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मज़ीद जानते हैं वकास सदीकी से। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। जहां दीगर अदारे मुतहरिक है, वहीं पर पुलिस का भी बड़ा किरदार है। लोगों को नकल मकानी के लिए उनकी मुआवनत की जा रही है, उनको गाड़ियां दी जा रही हैं, उनके जो माल हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त एसएसपी ऑपरेशन जो है वो फील्ड में मुतहरिक हैं। लोगों को नकल मकानी के लिए क्या हिदायत जारी कर रहे हैं, क्या अहकाम जारी हुए हैं, सर बताइएगा। इवैक्यूएशन के लिए हमारी सारी टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें हमारी जो अब तो हमने अपनी जो पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, हमारी मॉफिस स्क्वाड है, उसमें हमारी डॉल्फिन है, हमारी एलीट है, उन सबको भी इसी काम पे लगाया हुआ है। टोटल 42 मोबाइल्स हैं हमारी, जिसमें हमारी बसेस भी शामिल हैं, अपनी हमारे ट्रक्स और ट्रांसपोर्ट वो भी हम दे रहे हैं और साथ में मूव करा रहे हैं। कैटल को भी इवन साथ में मूव करा रहे हैं, तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी भी आपके सामने पीछे भी ट्रांसपोर्ट आ रही है, तो मैक्सिमम एफर्ट है कि आज रात तक ही इसको हम क्लियर करवा लें, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है पानी का, और काफ़ी सारे एरिया के जो कवर होना शुरू हो गया उसमें ये एरिया तो हमने इवैक्यूएट कर लिया, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात तक इसको मुकम्मल 100% यहाँ से क्लियर कर लें। और उसमें अवाम से हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि अवाम भी इसमें ज़्यादा तावन करे और इस चीज़ का इंतजार ना करे कि खुदा न खास्ता जब कैटास्ट्रोफी हमें हिट करेगी तो फिर हम मूव करेंगे। कोई इस तरफ वेट करने की बजाय, चूंकि हमें गाय बगाए सारी सूरत हाल से पता चल रहा है कि किस तरह से रेला आ रहा है, कहाँ पहुंच चुका है, तो हमारे पास ये आज रात का टाइम है और इसमें हम पब्लिक के साथ मिलके एफर्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह सबको हम यहाँ से निकाल के सेफ मकामात पे जो कि कैंप्स हैं जहाँ पे खाने पीने का भी इंतजाम है, तमाम सहूलियात है, तो उधर शिफ्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पानी का इंतजार ना किया जाए, सैलाब मुतासिर नकल मकानी के लिए महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल हो जाएं। एसएसपी ऑपरेशन की जानिब से बताया जा रहा है तमाम फोर्सेज जो हैं इस वक्त यही कोशिश। दरिया चनाब और सिंध में बड़े रैली की आमद मुतवक्के। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवन्यू के वफ्द की मिंचन बांदो दरियाई बेल्ट का दौरा। महर खालिद सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवन्यू साउथ पंजाब के वफ्द ने इंतजामात का जायजा लिया। एसी लियाकतपुर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी, घर और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इमरान साजिद ने ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि बड़े सैलाबी रैली की आमद पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए टीमें अलर्ट हैं। हेड सदनाई और गिरदोनवा के इलाकों में इंतजामिया की जानिब से इलाका मकीनों को इनखला बारे हिदायत। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होकर 50,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। 2 लाख क्यूसेक वाला सैलाबी रैली की आमद भी मुतवक्के है। मजीद जानते हैं आसिफ खान न्याजी से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम हेड सिग्नाई अब्दुल हकीम पे मौजूद हूँ। 50,000 क्यूसेक के करीब हेड सिग्नाई अब्दुल हकीम पर पानी आ चुका है। मुतवक्का तौर पर रात के किसी टाइम भी 2 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आप यहाँ पे मौजूद हैं, 50,000 क्यूसेक के करीब पानी चल रहा है, पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, शहरियों को क्या कहना चाहेंगे नकल मकानी के हवाले से और इंतजामिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं सदनाई पे मौजूद हूँ।
50,000 क्यूसेक पानी का बहाव चल रहा है। एक्सपेक्टेड है ये 2 लाख को क्रॉस करेगा, 2 लाख के करीब इसने पानी ने बहना है यहाँ। मेरी गुजारिश है जो बेट के अंदर लोग हैं, इंतजामिया जिस तरह से तावन कर रही है उनके साथ, उनका भी इखलाकी फर्ज बनता है अपनी जान और माल की वो खुद भी हिफाजत करें और उसको मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पे अपने सामान को, अपने मवेशियों को निकालने की जल्द अज जल्द कोशिश करें ताकि किसी बुरे वक्त से, हादसे से बचा जा सके। और ये पानी का बहाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, दरिया बिफर रहा है, तो मेहरबानी फरमाएं, इंतजामिया के साथ तावन फरमाएं। जी, इनका कहना था कि पानी का दबाव मुसलसल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान में DPO इरफान अली सम्मू की क़यादत में पुलिस सैलाब मुतासरीन के लिए पेश ड्रोन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते मुतासरीन को मदद फ्राहम की जा रही है। इलाका में जराइम पेशा अनासर की निगरानी भी जारी, इलाका मकीनों की सिक्योरिटी को यकीनी रखा जा रहा है। आपको अपडेट करें, पुलिस सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में सीनियर सहाफियों से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि भारत का हमला नाकाबिले बर्दाश्त था, पाकिस्तान ने सिर्फ दिफाई जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट का सैलाब से होने वाले नुकसानात पर शदीद तशवीश का इजहार। मुल्तान और गिरदोनवाह में सैलाब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया, दरिया की सतह में मुसलसल इजाफा, बारिशों का सिलसिला भी जारी। नशेब इलाकों से मकीनों का इनखला, जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुतासरीन की आरसी पनाहगाहों में सहूलियात के फुकदान की शिकायत, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग बुनियादी जरूरियात के बगैर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों का इनखला जारी। बस्ती लंगड़ियाल में जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है, जहाँ 6 मौजूआत हमरूट, अकबरपुर, भेड़ा मिलाना, खोर, साजरी वेन और लंगड़ियाल के मुतासरीन को पनाह दी गई है। इस कैंप के 45 खैमों में तकरीबन 300 अफराद मुकीम हैं। रिलीफ कैंप में जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमे मौजूद हैं और 3 वक्त का खाना भी फ्राहम किया जा रहा है, लेकिन खैमों में साफ पानी, बिजली और बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जो छोटे मोटे इश्यूज थे इनसे हम इसलिए खुद यहाँ मौजूद हैं, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। इनको हम 3 टाइम पे अच्छा खाना भी दे रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ मौजूद है, हमारी लेडी डॉक्टर WMO यहाँ मौजूद है, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, हमारी वेटरनरी टीम मौजूद है, रेस्क्यू के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह इनको अपने मेहमानों की तरह ट्रीट करेंगे। खैमों की कमी के बायस रिलीफ कैंप्स में कई खानदान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना था कि बारिश के दौरान इनके पास ना छत है और ना हवा के लिए पंखे। शदीद गर्मी में बच्चों की हालत गैर हो रही है। कई खैमों में 2 से 3 खानदान इकट्ठे रह रहे हैं, जबकि खवातीन के लिए अलहदा वॉशरूम तक मौजूद नहीं। अभी बस क्या करें, गुजारा हो रहा है। बस 3 फैमिलियां बैठी हैं, ये रिश्तेदार है, हम इस वजह से तीनों इकट्ठे बैठे हैं। अभी तक इनको नहीं मिला और ना ही उनको मिला है, हमें मिला है एक कैंप। अगरचे इंतजामिया फ्लड रिलीफ कैंपों में सहूलियात की फराहमी के दावे कर रही है, मगर जमीनी हकाइक मुख्तलिफ है। मुतासरा अफराद का कहना है कि इन्हें फौरी खैमे, साफ पानी, बैतुल खला और बिजली फराहम की जाए ताकि वो मजीद अजियत से बच सकें। मुतासरीन ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी इकदाम की अपील की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स अलिशबा आसिफ और बिलाल यूनस के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर दरिया चनाब के बहाव में तेजी, हेड तरीमों से सैलाबी रैला मुल्तान की तरफ बढ़ने लगा। संगीन सूरत हाल के पेश नजर जिले महकमे हाई अलर्ट, नशीबी इलाकों से मकीनों के इनखला का ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर ब्रीचिंग का फैसला पानी की सूरत हाल देख कर किया जाएगा। वाला के मकाम पर दरियाए चनाब के बहाव में इजाफा, तरीमू बैराज से सैलाबी रेला मुल्तान की तरफ बढ़ने लगा। संगीन सूरत हाल के पेश नजर जिले महक में हाई अलर्ट, दरियाई इलाकों से लोगों के इनखला का ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि माहिरीन की कमेटी पानी की सूरत हाल देख कर हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पर ब्रीचिंग का फैसला करेगी। जी, अभी तरीमू पे को 3,64,000 क्यूसेक पानी था। अभी थोड़ी देर पहले जो अपडेट आई है तो पीक अभी आज शाम तक त्रिमू में पहुंच जाएगी। त्रिमू से जैसे डाउन स्ट्रीम पानी आएगा तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है, कि कितने फ्लो से पानी आ रहा है, तो हमने क्या ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करना है या नहीं करना। उससे पहले हमारा मेन फोकस जो इवैक्यूएशन है उसके ऊपर है। हमारी तकरीबन 3.5 लाख के करीब आबादी थी जो दरिया के इलाके में थी, उसमें से हम 3 लाख के करीब अपने लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं। मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में अली कासिम गिलानी का कहना था कि इस वक्त 2 से 2,500 खैमों की जरूरत है। लोगों को जल्द से जल्द हिफाजती मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैंपों में लोगों के लिए खाने पीने के बेहतर इंतजाम किए हैं। प्राइवेट NGOs ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हम इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ कोई कमी नजर आती है उसकी निशानदही करते हैं। जिस तरह एंटी स्नेक वेनम
चंद कैंप्स में मौजूद नहीं था। हमारी निशानदही पे एंटी स्नेक वेनम पहुंचा दिया गया। हमारी निशानदही पे जो हैंड पंप्स हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं, पोर्टेबल बाथरूम नस्ब किए जा रहे हैं। बापर्दा खवातीन के लिए हम टेंट्स मुहैया कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ की कमी मुल्तान को दरपेश होगी वो सिर्फ और सिर्फ टेंट्स की कमी होगी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक त्रीमू में पानी आने के बाद अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए बहुत अहम हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सईद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान।